that Allah subhanahu wa ta'ala loves this gathering that is surrounded by thousands and thousands of angels who is writing good deeds on behalf of every individual who is present over here. Have you ever realized why the farishta, why the good deeds are written upon you? Why? Have you ever realized why the angels are writing good deeds on behalf of every individual who is present over here? Why? Because we are doing the zikr of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. We are doing the zikr of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. When it comes to the azmat, rifat of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam, have you ever realized who is Muhammad sallallahu ta'ala wasalam? Apart from that, he is the last messenger of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. Have you ever realized it? Have you ever realized? So if anyone is going to ask you who is Muhammad sallallahu ta'ala wasalam, this is the answer you are going to give them right now. The greatest human being to ever walk on the face of this planet was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. The role model for the entire world was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. Beloved to the heart of any true believer was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. Our prophet, our messenger, our beloved of beloved, our prophet of prophet, our messenger of messenger, our light of an eye. Our example is Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. The greatest mujahid was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. The greatest leader was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. The greatest teacher was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. The greatest human being was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. The greatest mercy and humanity was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. The greatest abid to ever worship Allah subhanahu wa ta'ala was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. The greatest human being to ever receive revelation from Allah subhanahu wa ta'ala was Muhammad sallallahu ta'ala wasalam. My respected friends, this is the maqam, this is the seerah of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. This is the seerah, this is the seerah of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. You know, the Sufyan Ikram, they say, if the whole ocean becomes into an ink, and the whole jungle becomes into a pen, still you won't be able to write the seerah of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. Still you won't be able to write the praises of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. Still you won't be able to write the praises and physical description of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. This is the maqam, this is the nisbat of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. I'm just going to be quite short, and I'm coming with the Urdu also, doesn't matter. The thing is that we are in the 21st century. We are in the 21st century, and what is our aim and objective? हमारा aim और objective क्या है? What is our aim and objective? The success. The answer is success, है ना? हमारा aim and objective कामयाबी. तो answer is success. If I ask my father, Walid Grami Huzur Sufiya Millat, he also wants success. If I ask myself, I also want success. If I ask the engineer, he also wants success. Doctor also wants success. UPSC aspirant also wants success. NEET aspirant also wants success. Khatib also wants success. Naat Khwa also wants success. The answer is that everyone wants success. But have you ever realized what is success? Where do you find success? The Sufyan Ikram, they say very good thing. They say very beautiful thing. They say before you attain success, ask what is success. You know, someone called me and said, Hazrat, please pray. I said, for what? That India is playing cricket match against Pakistan. And pray for what? That India wins the match against Pakistan. That means winning the match against Pakistan in cricket is success. Winning the match is success. Winning the match against Pakistan is success. Winning the tournament against Pakistan is success. Ask Hazrat Sayyidina Junaid Baghdadi. He will say losing a match is success. For he lost against the all of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. For he lost against the bloodline of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. For he lost against the bloodline of Nabi Kareem alayhi salatu wasalam. For he lost against the descendant of Nabi Kareem. Success. What is success? A brother might stand up. He says, wealth in the card. Wealth in the card. Profit. Having children. Having authority. Having leadership. This is success. That means having leadership is success. Having wealth is success. Having children is success. The land of Karbala will change you. Sacrificing your children, sacrificing your wealth is success. As soon you ask what is success, the Muazzin said, Hayyal al-Salah, Hayyal al-Salah, Hayyal al-Falah, Hayyal al-Falah. Hurry towards success, come towards success. Hurry towards Salah, come towards Salah. Yes, reading namaz is success. Reading namaz is success. Reading Salah 5 times a day is success. Reading namaz 5 times a day is success. But Maula Ali will tell you, sometimes postponing namaz is success.
So where is success? What do you mean by success? Where do you get success? We will ask Hazrat Sayyidina Junaid Baghdadi. We will ask Hazrat Sayyidina Imam Hussain. We will ask Hazrat Sayyidina Imam Ali Muqam that where is success? Hazrat Sayyidina Junaid Baghdadi will say, I lost that match for who? For the love of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. For the love of all of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. We will ask Hazrat Maulai Kainat. He will say, I sacrifice my asfar for who? For the love of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. For the adab of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. We will ask Hazrat Imam Hussain, where is success? He will say, I lost my children, I lost my health, I lost my property, I lost my everything for who? For the deen of Nabi Karim alayhi salatu wasalam, for the love of Nabi Karim alayhi salatu wasalam. This is success. तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी निस्बते रसूल में मैं जो बातें कर रहा था, क्योंकि मुझे कहा गया था कि कुछ आप इंग्लिश में भी बोले, हमारे जीएम भाई बोले थे कि कुछ इंग्लिश में भी बोले आप, तो मैं जो बातें कर रहा था वो निस्बत के ताल्लुक में था। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी निस्बते रसूल में है। कामयाबी चाहिए ना, कामयाबी चाहिए ना, नबी से करीब हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब निस्बत वाले हैं और आप सब कामयाब हैं, है ना, सब कामयाब है। ये तमाम सलासिल कामयाब है। ये अजमती, ये अशफी, ये शोहरवर्दी, ये नक्शबंदी, ये कलीमी, ये चिश्ती, ये सब क्या है? ये सब निस्बतें हैं और ये निस्बतें आपको रसूल तक मिलाती है। कहां तक? रसूल तक। और जो रसूल का हो गया ना वो खुदा का भी हो गया। अब आप देखिए, आप निस्बत का एक फायदा बता दूं, आज मेरी गुफ्तगू निस्बत पे ही, मुझे जिक्र और कुछ करना था लेकिन बातों बातों में निस्बत का जिक्र आ गया, तो आज मेरी गुफ्तगू निस्बत पे। देखिए, एक निस्बत का आपको एक फायदा बता दूं, निस्बत का एक फायदा बता दूं। देखिए, निस्बत से मकाम हासिल होता है। क्या होता है? हाईएस्ट रैंकिंग हासिल होता है। निस्बत से मकाम हासिल होता है। मेहनत से हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन निस्बत से मकाम हासिल होता है। ये फकीर अशरफी गदाई जिलानी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि निस्बत से मकाम हासिल होता है। अब आप सोच रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है। मैं बताता चलूं कि एक एग्जाम्पल भी देता चलूं कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं, आपसे कॉपी मांगा, मैंने कुछ अंग्रेजी में लिखा, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, ग्रामेटिकल एरर हो गई, मैंने उसको फाड़ा और आपको दे दिया। तो आप उस कागज को क्या करेंगे? तो उस कागज को आप फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? फेंकेंगे ना, इसलिए कि वो कागज किसी काम का नहीं, वो कागज में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। लेकिन उसी कॉपी के दूसरे कागज में मैं लिख दूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस कागज को निकाल के आपको दे दूं, आप क्या करेंगे? घर में जो सबसे ऊंची जगह होगी ना, आप उसको वहीं रखेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये कि पहले कागज को तो फेंक दिया, दूसरे कागज से इनकार क्यों? दोनों कागज एक ही कॉपी के, लिखने वाला भी एक, कलम भी एक, पहले कागज को तो फेंक दिया, दूसरे कागज से इनकार क्यों? तो आप यही कहेंगे ना, पहले कागज में जो था तो था, दूसरे कागज को रसूल के नाम से निस्बत था। इसलिए देखिए ना, निस्बतें मकाम बुलंद करती है, निस्बत से मकाम हासिल होता है। इसलिए उलमा में एक बहस चली, क्या चली? बहस चली कि मक्का अफजल की मदीना अफजल। एक बहस चली कि मक्का अफजल की मदीना अफजल। बात निस्बत की हो रही है कि मक्का अफजल की मदीना अफजल। मक्का में काबा है, मक्का में उमरा है, मक्का में हज है, मक्का में सफा है, मक्का में मरवा है, मक्का में मीना है, मक्का में मुजदलिफा है, मक्का में ये मस्जिद, मक्का में वो मस्जिद, मक्का में ये तारीख, मक्का में ये हिस्ट्री, मक्का में वो हिस्ट्री। सूफियाने कराम फरमाते हैं जनाब मक्के में सब कुछ, रसूल कहाँ है? इसलिए कि ये मकाम और अफजलियत तो रसूल से मिलती है। अब सूफियाने कराम क्या फरमाते हैं? हिजरत से पहले मक्का अफजल, हिजरत के बाद मदीना अफजल, जहां जहां रसूल वहां वहां अफजलियत। अब आप देखिए, हमने हजरत अबू बकर as-सिद्दीक को क्या माना? अफदलुल बश बादल अंबिया बित्तहकीक। हमने अबू बकर as-सिद्दीक को अफदलुल बश बादल अंबिया बित्तहकीक कि अंबिया व मुरसलीन के बाद अफजल कौन? सिद्दीक अकबर। ये हमने माना। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है ना। इस पे हदीसें भी मौजूद है, अक़वाले भी मौजूद है। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि जो जितना नबी से करीब वो उतना अफजल। हजरत सिद्दीक अकबर नबी से करीब,
हिजरत पे भी करीब, हजरत सिद्दीक अकबर हिजरत की रात करीब, तवाफ करते हुए करीब, सफा पर करीब, मरवा पर करीब, मस्जिद में करीब, हिजरत की रात करीब, गारे शौर में करीब, सफा पर करीब, मरवा पर करीब, मदीने गए करीब, जलवत में करीब, खलवत में करीब, उहुद में करीब, खंडक में करीब, बद्र में करीब, पानी पीते हुए करीब, रोजे की हालत में करीब, और आज जब विशाल हो गया है तो मस्जिद नबी में कब्र में भी करीब। तो जो जितना करीब वो उतना अफजल। इसलिए सूफियाने कराम फरमाते हैं कि जब मेरे नबी का नूर हजरत आदम में आया हजरत आदम अफजल, हजरत नूह में आया हजरत नूह अफजल, हजरत इस्माइल में आया हजरत इस्माइल अफजल, हजरत इब्राहिम में आया हजरत इब्राहिम अफजल, हजरत अब्दुल्ला में आया हजरत अब्दुल्ला अफजल, हजरत आमिना में आया हजरत आमिना अफजल, बीबी हलीमा के घर गया, बीबी हलीमा का घर अफजल, गारे शौर पर था, गारे शौर अफजल, गारे हेरा पर था, गारे हेरा अफजल, जब तक मरवा पर था, मरवा अफजल, जब तक सफा पर था, सफा अफजल, और अबू बकर के कंधों पर है, अबू बकर का कंधा अफजल, अबू बकर के कंधों पर है, अबू बकर के कंधा अफजल, जब तक मक्के में था, मक्का अफजल, जब मदीने आ गया, मदीना अफजल। क्या मतलब? दुनिया अफजलियत के पीछे पीछे चलती है और अफजलियत मुस्तफा के पीछे चलती है। अफजलियत अफजलियत मुस्तफा के पीछे, जहां मेरे नबी करीम वहां अफजलियत। अब आप देखिए, ये मिलाद की महफिलें हमें नबी से करीब करती है कि नहीं? बोलिए, ईमान से बोलिए। तो ये मिलाद की महफिलें हमें नबी से करीब करती है। तो निस्बत का बात मैं कर रहा था कि निस्बत का एक फायदा ये है कि मकाम हासिल होता है, दूसरा ये कि हक और बातिल में फर्क निस्बतें करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रहा है, तो मैं दलील भी देता चलूं कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम का ये वाकया याद है ना? हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए, हजरत अली असगर भी शहीद हो गए, हजरत कासिम बिन हसन भी शहीद हो गए, हजरत अब्बास भी शहीद हो गए। आखिरी वक्त आया, इमाम हुसैन घोड़े पर सवार तलवार को लिए आगे बढ़े और मुकाबले से पहले यजीदियों को एक नसीहत की, एक तकरीर की, हमदो सलाम के बाद तकरीर की, और क्या फरमाया कि ऐ लोगों तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अपना तारुफ कराया कि ऐ लोगों तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हजरत अली का बेटा हूँ, मैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे ही खानदान में अमीर हमजा हुए, मेरे ही खानदान के जाफर तैयार थे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हजरत इमाम हुसैन ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं 25 बार हज कर चुका हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इतनी बार दुरूद पाक पढ़ता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इतनी बार हज कर चुका हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इतनी औराद व वज़ाइफ पढ़ता हूँ। ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हजरत अली का बेटा हूँ, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। यहाँ भी निस्बतों का जिक्र किया, यहाँ भी निस्बतों का जिक्र किया। वजह क्या? सूफिया कराम फरमाते हैं, अगर इमाम हुसैन ये कहते कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं 25 बार हज कर चुका हूँ, तो हो सकता है यजीदी ये भी कहते हज आप क्या, हज तो हम भी कर सकते हैं। अगर इमाम हुसैन ये कहते कि हम तो इतनी औराद वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो हो सकता है यजीदी ये कहते औराद वज़ाइफ तो हम भी पढ़ते हैं। अगर नमाज का जिक्र करते तो हो सकता है यजीदी ये कहते नमाज आप क्या, नमाज तो हम भी पढ़ते हैं। अगर हज का जिक्र करते तो हो सकता है यजीदी ये कहते हज आप क्या, हज तो हम भी करते हैं। अगर औराद वज़ाइफ का जिक्र करते तो हो सकता है यजीदी ये कहते औराद वज़ाइफ आप क्या, औराद वज़ाइफ तो हम भी करते हैं। लेकिन यहाँ इमाम हुसैन ने निस्बतों का जिक्र करके उनको बता दिया और उन यजीदियों को चुप करा दिया कि ऐ यजीदियों, तुम नमाज रोजा हज ज़कात तो ले आओगे, अली जैसा बाप कहाँ से लाओगे, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा जैसी माँ कहाँ से लाओगे, और रसूलुल्लाह जैसा नवासा कहाँ से लाओगे? तो ये है निस्बत का फायदा, ये है निस्बत का फायदा। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदी फिल अजसादी व अला क़ब्री फिल क़ुबूर। मैं आखिरी बात कहकर गुजर जाऊंगा। बात निस्बत ही की हो रही थी ना, तो आज भी निस्बतें काम आती है कि कौन सी जमात हक पर, कौन सी जमात बातिल पर। 12 रबीउल अव्वल का मौका है, इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ।
कि कौन सी जमात हक पर, कौन सी जमात बातिल पर। इसलिए कि इसलिए कि आपने भी ये कहा कि हम भी मोमिन, वो भी कहते हम भी मोमिन, हम कहते कुरान वाले, वो भी कहते कुरान वाले, हम कहते अहले सुन्नत, वो भी कहते अहले सुन्नत। तो तय कैसे किया जाए कि कौन सी जमात हक पर, कौन सी जमात बातिल पर। तो यहाँ निस्बतें काम आती है। इसलिए कि आपने ये दावा किया कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो वहाँ से दावा हुआ हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। हमने कहा हम मोमिन, वहाँ से दावा हुआ हम भी मोमिन। हमने कहा हम ज़कात देते हैं, वहाँ से दावा हुआ हम भी ज़कात देते हैं। हमने कहा हम इतनी औराद वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी दावा हुआ हम भी इतनी औराद वज़ाइफ पढ़ते हैं। तो तय कैसे किया जाए कि हक पर कौन, बातिल पर कौन। तो हम यही कहते हैं ऐ लोगों, तुम नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो ले आओगे, अब्दुल कादिर जैसा खौस कहाँ से लाओगे, मोइनुद्दीन जैसा ख्वाजा कहाँ से लाओगे, अशरफ जैसा तारीख सल्तनत कहाँ से लाओगे। अरे तुम किताबें ले आओगे, तुम फतवे ले आओगे, तुम मदारिस ले आओगे, तुम जामिया ले आओगे, अहमद रजा जैसा मुजद्दिद कहाँ से लाओगे। यह है निस्बत का मकाम, यह है निस्बत का मकाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए ये निस्बत वाले हक पर, कादरी हक पर, चिश्ती हक पर, शोहरवर्दी हक पर, नक्शबंदी हक पर, चिश्ती हक पर, अजमती हक पर, अशरफी हक पर, निजामी हक पर, कलीमी हक पर, तमाम सलासिल हक पर। इसलिए कि ये जो तमाम सलासिल हमें नबी से जोड़ती है, और अल्लाह का होने के लिए नबी का जरूरत, नबी की जरूरत है ना। तो रब तबारक व तआला आपकी हाजिरी को कबूल अता फरमाए, मेरी भी हाजिरी को कबूल अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में या आपके सुनने में कुछ भी गलतियां हो गई तो मैं भी तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। आप भी पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।